Hello students, today I am going to teach you social science subject and chapter number 6, the beginning of settled life। जो बसा हुआ जीवन अपना जो बसा है उसके पहले की जो वारदात है, तो यहाँ पर वो चैप्टर उसके अबाउट बताएगा जो आदि मानव कैसे रहते थे। तो लेसन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 इज द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। जो बसी हुई जिंदगी है हमारी उसके पहले कैसी थी, जब भी बसी हुई है। The beginning of settled life. Number 1, choose the correct alternative from those given below। जो नीचे दिए गए हैं अल्टरनेटिव जो करेक्ट दिए गए हैं उनको क्या करने का है, चूज करने का है। Each question and write its relevant नंबर लेटर हमें इन द बॉक्स में लिखना है जो प्रोवाइड किया दिया गया है अगेंस्ट द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के सामने दिया गया है। नंबर 1 इज हुज सपोर्ट एंड वार्मथ डज गोमतू गेट व्हाइल गोइंग फॉर हंटिंग डेली। जो उस लेसन में है कोई गोमतू है उसका अबाउट बताया गया है कि वो जब किसका सपोर्ट मिलता था। वार्मथ डज गोमतू गेट जब वो कहाँ जाता था, गोइंग हंटिंग डेली शिकार के लिए रोज जाता था, तो किसका सपोर्ट था उसको, गोमतू को। ए फ्रेंड्स, बी गोलू, सी जुमा एंड डी फादर। तो राइट आंसर इज गोलू। तो हु सपोर्ट एंड वार्मथ डज गोमतू गेट व्हाइल गोइंग फॉर हंटिंग डेली। राइट आंसर इज गोलू। इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इज बी। We write here B. To number, the entire tribe of Gomtu has to wander for hunting because they did not like to stay at one place always. B. The wild animals, क्या है, the wild animals were running away from Gomtu's tribe. C. They got the prey oblique food only if they wandered. And D. They did not have permanent home. The entire tribe of Gomtu has to wander for hunting। शिकार के लिए भटकता था क्योंकि उसके पास घर नहीं था। D. They did not have permanent home। Its relevant letter is D. We write here D. 3 number, what did the primitive man, जो आदि मानव था, man select पसंद करता था as a place for habitation, रहने के लिए। A cave, B courtyard, C foot hills of the mountain and D farm, खेत। यानी गुफा है, कोर्टयार्ड, फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन एंड डी फार्म। राइट आंसर है गारों में गुफा में रहता पसंद करता था, तो ये राइट आंसर इज केव। व्हाट डिड द प्रिमिटिव मैन सिलेक्ट एज अ प्लेस ऑफ हैबिटेशन। राइट आंसर इज ए केव। इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इज ए, सो वी राइट हियर ए। नंबर 4 है what was the only reason of wandering for the primitive man। what was the only, कौन सा रीजन था भटकने का for the primitive man के लिए। A heat and cold, B need of food, C ran and D search of animals। Question 4 है what was the only reason of wandering। जो primitive man है यहाँ से वहाँ भटकता था, तो उसका रीजन क्या था। what was the only reason of wandering for the primitive man। A heat and cold, B need of food, C ran and D search of animals। राइट आंसर इज नीड ऑफ फूड, खुराक की तलाश में वो क्या है, इधर उधर घूमता था। तो राइट आंसर इज बी,
need of food, its relevant number letter is B. We write here B. Now 5 number is Joma's hut. जोमा की जो झुपड़ी थी was the center of activities because, जो प्रवृत्ति का केंद्र था जो जोमा का घर झुपड़ी थी क्योंकि ए जोमा's hut was very big, उसका जो झुपड़ी थी बहुत बड़ी थी. बी all the facilities to carry out different activities were available in जोमा's hut. जोमा के घर में क्या है, सभी तरह की फैसिलिटीज थी, डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी वहाँ जो वहाँ पर मिलती थी, अवेलेबल थी. सी जोमा's father was the leader of the village. जो जोमा के फादर थे वो गांव के प्रमुख थे, मुखिया थे. सी जोमा's father was the leader of the village. and D जोमा's hut was in the center of the village. जोमा की जो झुपड़ी थी वो क्या है, गांव के बीच में थी. तो जोमा's hut was the center of activities because जोमा's father was the leader of the village. जोमा के जो फादर थे वो गांव के लीडर थे, मुखिया थे. राइट आंसर इज सी. इट्स रिलेवेंट नंबर लेटर इज सी, सो वी राइट हियर सी. नंबर 6, which thing were not found by the archaeologist from the remnants during excavation. A footprints, B bones of animals, C toys, and D tools for farming. Right answer is toys. Its relevant letter is C. We write here C. Number 7, at which ancient place probably the growing of wheat and barley is believed to be done for the first time in at which ancient. कौन सी एंशियंट प्लेस थे जो जूने जमाना जो जूना था. एट विच जगह थी, जो जूनी जगह थी. प्रोबेबली द ग्रोइंग ऑफ व्हीट, जो वहाँ पर गेहूँ और जो व्हीट एंड जो बाजरी थी इज बिलीव्ड टू बी होती थी फॉर द फर्स्ट टाइम. ए मेहरगढ़, बी महागढ़, सी उल्लार, एंड डी चिराड. राइट आंसर इज मेहरगढ़. इसका जो रिलेवेंट लेटर है ए है, यहाँ लिखेंगे ए. 8 नंबर में है फ्रॉम विच एंशियंट प्लेस. फ्रॉम विच एंशियंट प्लेस द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द बोन्स. कौन से एंशियंट जमाने में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके ढूंढे जो हड्डियां होती थी ऑफ शीप, गोट्स एंड काउज इन लार्ज क्वांटिटी. यानी जो बोन्स मिलते थे, हड्डियां मिलती थी. शीप है, जो शीप है, घेटे हैं, बकरियां हैं और जो गायें होती थी उनकी जो हड्डियां मिलती थी बहुत इन लार्ज क्वांटिटी, जो बहुत बड़ी मिकदार में मिलती थी. तो फ्रॉम विच एंशियंट प्लेस द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द बोन्स ऑफ शीप, goats and cows in large quantity. A है महागढ़, B हुल्लार, C बरजौम एंड D है मेहरगढ़. राइट आंसर इज मेहरगढ़. तो फ्रॉम विच एंशियंट प्लेस मेहरगढ़ क्या था? द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड the bones of sheep, goats and cows in large quantity. वो था मेहरगढ़. Its relevant number letter is D.
So we write here D. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स। हमें ब्लैंक्स को क्या है जो है फिलअप करना है प्रॉपर जो है योग्य वर्ड से इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें हमें योग्य शब्दों के साथ क्या है खाली जगह हमें पूरी करनी है। नंबर 1, गोमतू प्रिपेयर्ड। जो गोमतू था तैयारी बनाता तैयार करता था अ वेपन हथियार बाय टाइंग अ शार्प स्टोन। स्टोन कैसे है पत्थर जो हो तेज पत्थर बनाता था विथ अ स्ट्रॉन्ग स्टिक। जो स्ट्रॉन्ग स्टिक थी उससे वो शार्प स्टोन बनाता था, तो यहाँ लिखेंगे शार्प स्टोन। नंबर 1, गोमतू प्रिपेयर्ड अ वेपन बाय टाइंग अ शार्प स्टोन विथ अ स्ट्रॉन्ग स्टिक। नंबर 2, the habitations of primitive men kept on changing with the change in season। द हैबिटेशन जो रहने की जगह थी वो प्रिमिटिव मैन की वो रखता था चेंजिंग किसकी चेंजिंग से वो भी चेंज करता था चेंजिंग विथ द चेंज इन सीजन। 3 नंबर, प्रिमिटिव मैन लिव्ड। प्रिमिटिव जो आंधी मानव रहता था इन काउज जो गुफाओं में रहता था टू प्रोटेक्ट अपनी हिफाजत के लिए देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड जंगली जानवरों से बचने के लिए जो आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे, गारों में गुफाओं में रहते थे अपनी हिफाजत के लिए फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से बचने के लिए। प्रिमिटिव मैन जो आदि मानव कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे अपना हिफाजत के लिए। तो लोग कहाँ रहते थे, केव्स में, इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। लिंक्स नंबर 4, काउज वेर टेकन। काउ जो है गाय को ले जाया करते थे टू द रिवर बैंक जो नदी का किनारा होता था फॉर ड्रिंकिंग वाटर पानी पिलाने के लिए। जो गाय लोग पालते थे उन्हें कहाँ ले जाया जाता था पानी पिलाने के लिए, रिवर बैंक के नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए गायों को ले जाया करते थे। कौन, प्रिमिटिव मैन जो थे आदि मानव। फोन नंबर है काउज वेर टेकन टू द रिवर बैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नंबर 5, द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस। प्रूफ मिले उनको एट सर्टेन प्लेसेस विच इंडिकेट जो बताते हैं दैट अर्ली जो पहले के अर्ली प्रिमिटिव मैन थे आदि मानव थे। प्रिमिटिव मैन वेर क्या कर वो लोग थे, फार्मर्स थे एंड केटल क्या करते थे वो लोग, केटल हार्डर्स थे। तो द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस at certain places which indicate that early primitive men were farmers and cattle herders। 6 number, from one of the graves of Mehergarh along with buried जो दफनाते थे जो कब्रें बनाते थे डेड बॉडीज की। रेमनेंट्स ऑफ गोट आर ऑल्सो फाउंड वहाँ पर उसकी गोट की भी कब्रें पाई गई। गोट्स आर ऑल्सो फाउंड। 6 नंबर, फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेव्स ऑफ मेहरगढ़ अलोंग विथ buried dead bodies remnants of goat are also found। 7 number, the archaeologists have found the sites where men stayed जहाँ पर रहते थे वो लोग, in houses cooked food खाना पकाते थे and reared animal को पालते थे। एनिमल को क्या करते थे, जो जानवर थे उन्हें चराया करते थे। The archaeologists have found the sites
where men stayed in houses, cooked food and reared animal. 8 number, to take care of agriculture, जो एग्रीकल्चर जो होती थे खेती का ध्यान रखते थे, एंड एनिमल्स मीन्स बिगनिंग ऑफ रेसिडेंस. 9 number, ड्यूरिंग स्टडी रेसिडेंस द फर्स्ट टाइम एनिमल वॉज अ डे. ड्यूरिंग स्टडी रेसिडेंस जो थे, द फर्स्ट टाइम जो एनिमल थे, पालतू जानवरों को रखते थे वो लोग, टाइम एनिमल वॉज अ डे. ना क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर. पुट अ टिक मार्क in the box against the following statements if they are true and a cross mark wrong if they are false. Number 1, the primitive man lived a wandering life only to satisfy the need of residence. क्या है? द प्रीमेटिव में रहते थे, जिंदगी भटकती जिंदगी जीते थे, ओनली सिर्फ टू सेटिस्फाई संतोष के लिए, द नीड ऑफ रेसिडेंस के लिए. स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर रॉन्ग मार्क. 2 number, जोमा एंजॉयड स्विमिंग इन द रिवर. जोमा एंजॉय करते थे स्विमिंग इन द रिवर, व्हाइल द अदर्स टुक केयर ऑफ द कीटल. दूसरे जो थे दरमियान जो दूसरे अदर जो आते थे वो एनिमल की क्या करते थे, वहाँ केयर करते थे ऑफ द कीटल. तो जोमा एंजॉय करती थी स्विमिंग इन द रिवर व्हाइल द अदर्स टुक केयर ऑफ द कीटल. स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर राइट मार्क. 3 number, द प्रिमिटिव मैन used sharp sickles. सिक्कल्स होते हैं ऑफ आयरन फॉर रीपिंग क्रॉप्स. क्रॉप जो फसल काटने के लिए सिक्कल का यूज करते थे. द प्रिमिटिव मैन यूज्ड शार्प सिक्कल्स. तातरडा जो होता है यूज करते थे, जो लोखंड का होता था, फॉर रीपिंग क्रॉप्स. रॉन्ग. Number 4, man in Joma's village prepared clay pots. जो आदमी जो थे जोमा के गांव के, वो लोग बनाते थे मट्टी के बर्तन तैयार करते थे. The statement is right, so we put here right mark. Man in Joma's village prepared clay pots, right. 5 number, our present food is an obligation of the primitive man's process of residence. जो हमारे अभी का जो खाना हम खाते हैं ये है इनका एहसान है, ऑब्लिगेशन है जो आदि मानव थे जो उन्होंने प्रोसेस किया था ऑफ रेसिडेंस, जो रहने के लिए प्रोसेस जो किया था. आज हम उसमें क्या है, आवर प्रेजेंट जो फूड है इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिमिटिव मैन्स, जो उन्होंने प्रोसेस किया था ऑफ रेसिडेंस की, जो घर की रेसिडेंस की प्रोसेस चलाई थी. तो हमारा जो खाना भी हम जो है आवर प्रेजेंट फूड इज एन एहसान है उनका, प्रिमिटिव मैन जो उन्होंने स्टार्ट किया था. आज हमको हमसे बहुत सुधार, बहुत अच्छा आज हमारी लाइफ है. तो प्रिमिटिव मैन के हिसाब से ही हमें आज क्या है, उनके प्रोसेस से हम क्या है, हमें रहने के लिए हमने अच्छी जगह सोधी है. तो आवर प्रेजेंट फूड इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिमिटिव मैन्स प्रोसेस ऑफ रेसिडेंस, राइट. नंबर 6, द प्रिमिटिव मैन कुक्ड फूड. जो आदि मानव खाना पकाते थे अंदर, इनसाइड द हाउस, घर में खाना पकाते थे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दरमियान, एंड आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग नाइट. वो लोग खाना पकाते थे हाउस में, घर के, ड्यूरिंग द डे, घर में अंदर खाना पकाते थे, और एंड आउट रात को बाहर खाना पकाते थे. रॉन्ग. नंबर 6, द प्रिमिटिव मैन कुक्ड फूड इनसाइड
द हाउस ड्यूरिंग द डे एंड आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग नाइट। 7 नंबर, द प्रिमिटिव मैन कुक्ड फूड इन मेटल पॉट्स। उस वक्त कोई मेटल की क्या है, कोई इजाद नहीं हुई थी, इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो यहाँ लिखा हुआ है द प्रीमेट, जो आदि मानव थे खाना पकाते थे, वो धातु के बर्तन में खाना पकाते थे। तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वी राइट हियर, यहाँ पर हम क्रॉस मार्क करेंगे क्योंकि द प्रीमेटिव मैन कुक्ड फूड इन मेटल पॉट्स गलत है। उस वक्त मेटल नहीं था, क्ले पॉट से लोग यूज करते थे, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। वी पुट हियर रॉन्ग मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द पेयर्स करेक्टली। हमें पेयर से है, इसे करेक्ट मैच करना है, जोड़ना है जोड़ के को। राइट द करेक्ट नंबर ऑफ सेक्शन बी इन द आंसर सेक्शन। जो आंसर एक सेक्शन है और सेक्शन बी में से हमें चूज करके दोनों को जो मैच होता है उसका नंबर हमें आंसर में लिखना है। से जो आंसर सेक्शन है इन सेक्शन 1A है, उसमें 1 नंबर में है रेसिडेंस एट ओनली 1 प्लेस। 2 नंबर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स। 3 नंबर साइंस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। 4 नंबर फाइंडिंग ऑफ क्ले यूटेंसिल्स। इन सेक्शन बी, नंबर 1 बिगिनिंग of steady residence. 2 number beginning of cattle rearing. 3 number ancient places of new stone age. 4 number need to store. 5 number need to build house. Now we match section A with section B and write the answer in answer section. Number 1 residence at only 1 place. We match with need to build house. तो रेसिडेंस जो होता था एट ओनली 1 प्लेस, किसके लिए होता था, नीड की जरूरत थी, टू बिल्ड हाउस। वी राइट हियर, हम 1 नंबर को किससे मैच करेंगे, 5 नंबर से। मैच नंबर 1 विथ नंबर 5। 2 नंबर प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स को जो रखा जाता था तो उसके लिए क्या करते थे, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स जमा जो करते थे उसको, इससे हम मैच करेंगे नंबर 4 से नीड टू स्टोर। प्रिवेशन जो होती थी ग्रेन्स के अनाज दानों की, नीड टू स्टोर उसे जमा करने की उनको होती थी, नीड जरूरत होती थी, तो नीड टू स्टोर। सो वी मैच नंबर 2 टू नंबर 4। 3 नंबर साइंस ऑफ हट्स एंड हाउसेस, क्या बताते हैं, साइंस ऑफ हट्स एंड हाउसेस। वी मैच विथ नंबर 1 बिगिनिंग जो थी ऑफ स्टडी रेसिडेंस। और नंबर फाइंडिंग ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, जो क्ले यूटेंसिल्स जो लोगों ने फाइंडिंग किया था, ढूंढा था, उसको मैच करेंगे एंशियंट प्लेसेस ऑफ न्यू स्टोन एज। एंशियंट प्लेसेस ऑफ न्यू स्टोन एज। Then once again we match 1 number 2, 5 number, 2 number preservation of grains, 2 number 2, 4 number need to store, 3 number science of huts and houses, match with number 1 beginning of steady residence, and 4 finding of clay utensils, number 3 ancient places of new stone age. Question 5. Answer the following questions in 1 or 2 sentences each. एक ही यह 2 सेंटेंस में हमें आंसर लिखना है। नंबर 1, हाउ डिड गोमतू प्रिपेयर। गोमतू जो था प्रिपेयर करता था विपन हथियार फॉर हंटिंग, कैसे करता था, तैयार बनाता था शिकार के लिए। गोमतू प्रिपेयर्ड अ विपन फॉर हंटिंग by
by trying a sharp stone with a strong stick with the help of creepers। डालियाँ होती थी जो क्रीपर्स होते थे, उसके बेल जो होती थी, जो बेल चढ़ाते हैं उसकी जो लकड़ियाँ होती थी, उसको क्या करता था, शार्प जो उसको शार्प स्टोन और उसे स्ट्रॉन्ग स्टिक जो होती थी उसे बनाता था विद द हेल्प ऑफ क्रीपर्स। तो हाउ डिड गोमतू प्रिपेयर अ weapon for hunting? गोमतू प्रिपेयर्ड a weapon for hunting by trying a sharp stone with a strong stick with the help of creepers। Question number 3, for which need did the primitive man wander? For which need क्या जरूरत के लिए वो आदिमानव भटकता था? The primitive man wandered to satisfy the need of food। For which need, तो उसका क्या है जो सेटिस्फाई होता था, सुकून मिलता था। द प्रीमेटिव मैन वंडर्ड, फिरता था उसको सेटिस्फाई, जो खुराक के लिए जो नीड होती उसकी, जो खुराक नहीं, खुराक के लिए वो नीड ऑफ फूड को सेटिस्फाई होता था। द नीड ऑफ फूड, उसकी जो जरूरत थी वो थी खुराक थी, इसके लिए वो क्या है प्रीमेटिव मैन घूमता रहता था, भटकती जिंदगी गुजारता था। द फॉर विच नीड तो है नीड ऑफ फूड, तो द प्रीमेटिव जो मैन है वंडर्ड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ फूड। फॉर नंबर, व्हाई आर सम मैन, क्यों कुछ लोग शार्पनिंग करते थे द एज ऑफ सिक्कल, डाटा होता मेड आउट ऑफ स्टोन, जो वो लोग पत्थर का बनाते थे उसको क्यों वो लोग धार करते थे, शार्पनिंग करते थे। द एज ऑफ सिकल मेड आउट ऑफ स्टोन, सम मैन आर शार्पनिंग द एज ऑफ सिकल मेड आउट ऑफ स्टोन बिकॉज इट विल बी नीडेड, जरूरत पड़ती थी उसकी, फॉर रीपिंग द क्रॉप्स, काटने के लिए, फसल काटने के लिए, इन द फील्ड, खेतर में जो क्रॉप्स होती थी उसके रीपिंग के लिए वो लोग उसे तेज बनाते थे। तो व्हाई आर सम मैन शार्पनिंग द एज ऑफ सिक्कल, जो सिक्कल की धार होती थी उसे तेज करते थे, क्यों करते थे, जो उस पत्थर के बनाए होते थे। तो व्हाई आर दी सम मैन शार्पनिंग द एज ऑफ सिक्कल मेड आउट ऑफ स्टोन, सम मैन आर शार्पनिंग द एज ऑफ सिक्कल मेड out of stone because it will be needed for reaping the crops in the field। 5 number, what was Joma's brother Daku doing? What was Joma's brother Daku doing? Joma's brother Daku was busy driving away the birds which had come, जो आते थे। तो जो जोमा का भाई था, तो what was Joma's brother Daku, क्या करता था वो, जो तो जोमा का जो भाई था वो बिजी रहता था, ड्राइविंग करता था, भगाता था अवे द बर्ड, जो बर्ड्स आते थे खेती में दाना चुगने के लिए, विच हैड कम टू ईट द राइप क्रॉप, जो पका हुआ अनाज खाने, जो फसल थी उसे खाने के लिए आते थे, उसे क्या करता था, ड्राइविंग करता, भगाता था। वे द बर्ड्स विच हैड कम टू ईट द राइप क्रॉप्स। तो व्हाट वाज जोमास ब्रदर डाकू, जो डाकू था वो क्या करता था, डूइंग, जोम्स ब्रदर, जोमास जो ब्रदर था डाकू वॉज बिजी रहता था ड्राइविंग अवे, जहाँ पर द बर्ड्स विच हैड कम, जो आते थे, टू ईट खाने के लिए, द राइप क्रॉप्स, जो फसल तैयार होती थी उसे खाने के, उसे वहाँ से उसे वो बिजी रहता था, उसे वहाँ से क्या करता, बर्ड्स को वहाँ से भगाता था। तो इस तरह जोमास ब्रदर डाकू वॉज बिजी ड्राइविंग अवे
द बर्ड्स विच हैड कम टू ईट द राइप क्रॉप्स।